Hello, viewers. Welcome to the YouTube channel Lex Consilium Foundation. And we are in conversation today for the playlist Insemilie. The resource person is Lieutenant General Vinod Bhatia. You have already seen him, watched him, heard him on this channel a number of times. He is one of the leading military strategist today, and he had commanded 25 infantry div and he commanded 33 corps. So he has the apex at the theater level experience, insight both of northern and northeast theaters of operations in India. And then he held the pivotal chair of Director General of Military Operations. So, whatever was left while commanding a division and corps, he has an insight into practical nuances of those matters. Welcome, Vinodji. So, before today, we'll be talking about the Ukraine war and the heliborne, airborne operations part of it. Now, would you like first to give a brief background about the airborne operations undertaken by Russia in this war? Thank you, sir. Always a pleasure and learning experience being on your channel, sir. बहुत अच्छा लगता है. It's very specific, very focused, sir. और जो आपने बोला था, I'm a simple soldier, a paratrooper, nothing else. रशिया यूक्रेन वॉर जो थी सर 24 फरवरी 2022 में शुरू हुई थी. तो आज 4 साल प्लस हो गए हैं. When the war started, everyone gave it 2 to 3 days, at best 4 days, 5 days, 1 week, because this is special military operations by Russia, sir. No one expected this to be a unending, unfinished war. The reason for that was because the war started. जब वॉर शुरू हो गई तो पहला जो उसका ऑपरेशन था वो एक एयरबोर्न ऑपरेशन था एंड वो उसी कीपिंग में था जो रशियन की स्ट्रेटजी है, रशिया की स्ट्रेटजी है. वैसे स्ट्रेटजी वो यूएस की भी है और डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रेटजी है यूएस की भी, रशिया की भी, टू यूज एयरबोर्न फोर्सेस. ये एयरबोर्न फोर्स यूज करके स्पिरिट बनाया उन्होंने. स्पिरिट करके एयरहेड बनाते हैं, जैसे चेकोस्लोवाकिया में किया उन्होंने ये अफगानिस्तान में किया. अगर आप देखें चेकोस्लोवाकिया में जो उन्होंने किया था, तो दे वेंट एंड विद इन 3 days दे हैड, दिस इज 1967 आई थिंक, ऑपरेशन स्टॉर्म 333 जिसको कहते हैं. सॉरी, ऑपरेशन स्टॉर्म 333 तो इसका था अफगानिस्तान का. चेकोस्लोवाकिया का जो था 21 अगस्त 1968 में किया था. तो दे लैंड, एयर ड्रॉप, paradrop and capture the airfield and then bring in the heavy lift aircraft with all the forces and then they are fighting the war from within. हम बॉर्डर से लड़ते हैं, ये विदिन से लड़ते हैं. That's what airborne forces all about. तो इन्होंने 24 फरवरी 2022 में भी लॉन्च किया था एयरबोर्न ऑपरेशंस को. सिर्फ एयरबोर्न नहीं किया, हेलीबोर्न किया था. आई थिंक देयर सम मिसअंडरस्टैंडिंग इन द जजमेंट, इन द इंटेलिजेंस. और कीव जो उनका कैपिटल है, उनके पास एयरफील्ड है जिसको कहते हैं होस्टमल का एयरफील्ड. इट्स अबाउट 20 किलोमीटर है वहां से. और वहां पर इनका इरादा था कि 34 हेलीकॉप्टर इन्होंने लैंड किए थे वहां पर, वहां से, और एयरफील्ड को कैप्चर करके और वहां से कीव को जाना, वहां गवर्नमेंट बिल्डिंग कैप्चर करनी, गवर्नमेंट कैप्चर करनी, एंड द वॉर वुड हैव फिनिश्ड देयर. सो दैट वाज द इनिशियल प्लान विद द नेक्स्ट 4-5 days, but it did not happen because the airborne operation and the heliborne operation, there are many reasons for the heliborne operation to fail. I will not go into the tactical reasons, but at the strategic level I think it was not well coordinated, it was not well planned, एंड जो इंटेलिजेंस थी वो वीक थी. क्योंकि उन्होंने सोचा यूक्रेन कुछ नहीं करेगा, यूक्रेन ने पहले मना कर दिया करने से. लेकिन 23 फरवरी को उन्होंने अपनी एक जो उनकी मेन फोर्स थी, रैपिड रिएक्शन ब्रिगेड थी, जो 45 रैपिड रिएक्शन, उनको उन्होंने मूव कर दिया वहां पर 23 फरवरी को. तो जब ये गए वहां पर तो उधर दे कुड नॉट कैप्चर द एयरशिप. और जो होस्टमल एयरफील्ड है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरफील्ड्स. इट कैन टेक ऑन द Antonov 225, which is the largest aircraft in the world, largest aircraft in the world. That is much larger than the Russian aircraft and होस्टमल में. और उसका बेस जो उसको Antonov बोलते हैं, Antonov is the company. तो Antonov एयरफील्ड ही बोला जाता है उसको. तो उन्होंने उसको ले लेंगे, उसके बाद वो अपने IL-76 से फ्लीट को लैंड करके, पूरी एयरबोर्न से लैंड करके वहां से वो मूव करेंगे एंड दे विल कैप्चर द कैपिटल ऑफ यूक्रेन की. तो वो नहीं हो. So that was the main reason for the war, which is now, had they captured the airfield in time, had they inserted airborne force, had landed the force, took on the airfield, the operational build-up should have taken place, logistic build-up taken place, and Belarus से उन्होंने link up करना था, वो बाद में होता. तो जो यूक्रेन वॉर जो आज देख रहे हैं 4 साल से ऊपर हो गए, वो उसी टाइम 5 से 7 दिन में वो खत्म हो जानी थी. तो वो नहीं. तो दैट इज वन ऑफ द मेन ऑपरेशन विच इज एयरबोर्न ऑपरेशन जो है. यू टर्न द फ्लैंक ऑफ द एनिमी बाय अ वर्टिकल डेवलपमेंट. मतलब आप ऊपर से जाते हैं और आप पीछे से लड़ते हैं. यू फाइटिंग अगेंस्ट
थर्ड लाइन ट्रूप्स, नॉट फर्स्ट लाइन ट्रूप्स जो फ्रंट में रहते हैं. तो एयरबोर्न ट्रूप्स ऑलवेज गो फ्रॉम बिहाइंड and fight against second, third line troops. And when they land, they create a decision dilemma at the highest levels. ये अभी लड़ाई तो बिल्कुल अंदर आ गई है. नहीं तो लड़ाई हमें बॉर्डर्स पे होती है, जैसे हमारे यहाँ बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है तो किसी को खास फर्क नहीं पड़ता बॉर्डर लड़ाई हो रही है. लेकिन ये लड़ाई जब अंदर ले आते हैं, बिल्कुल मेन सिटीज में ले आते हैं, कैपिटल में ले जाते हैं, सेकंड लाइन थर्ड लाइन ट्रूप्स में ले आते हैं, तो वो लड़ाई अलग हो जाती है. तो मेन रीजन फॉर द प्रोलॉन्गिंग ऑफ द रशियन वॉर वाज द फेलियर ऑफ द एयरबोर्न फोर्सेस टू टेक द इनिशियल ऑब्जेक्टिव एंड कैप्चर की. Now, this Russian airborne forces are known to be a formidable force. They have been in existence for a number of years. तो क्या आप फ्लैग करना चाहेंगे कि इससे पहले उनका कामयाबी का जहां उन्हें सक्सेस मिली हो वो कौन सा ऑपरेशन है जिसपे कि दे वुड बी प्राउड ऑफ और दुनिया ने रियलाइज किया कि रशिया का ये एलिमेंट काफी एडवांस्ड है, इफेक्टिव है? रशिया की जो एयरबोर्न फोर्सेस है ओवर द इयर्स लगभग एक कोर स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं एयरबोर्न फोर्सेस की. अभी उनके 45,000 है, 4 डिविजन्स हैं उनकी एयरबोर्न फोर्सेस की. तो एंड दे हैव अ वेरी लार्ज फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट आल्सो. जी हाँ. वेरी लार्ज, सम ऑफ द हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड लाइक द AN-225, AN-124, IL-76. ये बहुत बड़े एयरक्राफ्ट है, स्ट्रेटेजिक लिफ्ट है इनमें. तो जो रशियन एयरबोर्न फोर्सेस हैं दे ऑलवेज बीन यूज्ड एज द स्पीयरहेड. चाहे आपने चेकोस्लोवाकिया में देखा 1968 में या अफगानिस्तान में they went and captured the Kabul airfield and the Bagram airfield, and वहां से 25th दिसंबर को लॉन्च किया उन्होंने 1979 को, और within 27th of December they had built up and captured the palace and Kabul. वो काबिलियत थी उसमें उनकी. ये काबिलियत इस समय भी थी, लेकिन इस समय इन्होंने क्या किया, एयरबोर्न की जगह इन्होंने हेलीबॉर्न लॉन्च किया. तो हेलीबॉर्न ऑपरेशंस जो हैं, these हेलीकॉप्टर्स आर फ्लाइंग मैप ऑफ द अर्थ. और इन्होंने इसलिए लॉन्च किया क्योंकि एयरबोर्न ऑपरेशंस को क्या होता है, जब लॉन्च करते हैं एयरबोर्न ऑपरेशन स्प्रेड होता है. आप हेवी ड्रॉप इक्विपमेंट उनका लॉन्च करते हैं, गन्स होती हैं, आर्टिलरी गन्स होती हैं, बहुत बड़ी BMPs होते हैं, इवन लाइट टैंक्स लॉन्च कर सकते हैं. लेकिन इन्होंने क्या किया, हेलीबॉर्न लॉन्च किया. उन्होंने फटाफट हम उसको जल्दी स्पीडी कैप्चर ऑफ द एयरफील्ड और फिर हम एयरलैंड करेंगे ट्रूप्स को. तो वो नहीं हुआ. नैप ऑफ द अर्थ फ्लाई किया, हेलीकॉप्टर गॉट पिक्ड अप. उन्होंने जो साइबर अटैक किए थे, उनके जो कम्युनिकेशन सेंटर्स थे, उन्होंने साइबर अटैक की, उसको कर दिया. लेकिन बस ने स्टारलिंक से उनको कम्युनिकेशन दे दिया. तो लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग. द मिसाइल्स अटैक टुक प्लेस ऑन द 24th मॉर्निंग एट 6 o'clock. वो इफेक्टिव नहीं हुए. दे मिस द टारगेट्स एक्चुअली. यूक्रेन ने जो ग्राउंड पे जो ट्रूप्स मूव कर दिए और वो जो लड़ाई करी उन्होंने यूक्रेन ने, इन्होंने कभी सोचा नहीं था यूक्रेनियंस विल स्टैंड अप एंड फाइट. तो असेसमेंट गलत हो गया कि एयरबोर्न ऑपरेशन गलत नहीं हुए. और एक मेजर कारण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो रशिया ने क्या किया, अपनी एयरबोर्न फोर्सेस में कंस्क्रिप्ट लाए. पहले कंस्क्रिप्ट नहीं होते थे, तो अभी है एयरबोर्न में कंस्क्रिप्ट है. तो ये बहुत बड़ी बात है कि एयरबोर्न फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस में जो है उसमें कंस्क्रिप्ट जो है वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी डेडिकेटेड ट्रूप्स चाहिए, मोटिवेटेड ट्रूप्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए. एंड ये सेल्फ सफिशिएंट ट्रूप्स हैं, इनका कोई सपोर्ट तो होता नहीं है दुश्मन के पीछे लाइंस में. तो ये चाहिए, और ये गलती हमको नहीं करनी चाहिए. हम भी अग्निवीर ला रहे हैं, विच इज नॉट कंस्क्रिप्टेड बट दे आर शॉर्ट टेन्योर ट्रूप्स, 4 साल के लिए आ रहे हैं. वो ट्रूप्स नहीं काम करें. क्योंकि मुझे याद है मैं 2008 में रिटायर हुआ, उससे पहले रशियन मिलिट्री का एयरबॉर्न एलिमेंट आया था विद पैरा ब्रिगेड इन आगरा. दे वर टू कैरी आउट जॉइंट सर्विसेज एक्सरसाइज, और उसके लिए SOPs वगैरह मेरे पास लीगल एंगल से वेट होने के लिए तब आई थी. मैं बात कर रहा हूँ 2006 और 2007 की. तो तब तक इनका एक फॉर्मिडेबल फोर्स हो चुका था. तो इन रिट्रोस्पेक्ट अब आप क्या एन्यूमरेट करना चाहेंगे कि इसमें स्ट्रेटेजिक या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर क्या क्या मिस्टेक हुई और जिनसे हम सबक ले सकते हैं हिंदुस्तान की फौज? सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. 2005 में मैं था, DDG स्पेशल ऑप्स था मैं जी. और हमने बहुत बड़ी एक्सरसाइज करी थी 2005 में, 2007 में भी. उसमें इन्फेंट्री डायरेक्टरेट इन्वॉल्व थी. था जी. और मैं गया था, MO स्पेशल ऑप्स में था मैं, तो हमारा था वो. और दोनों चीफ थे वहां पर. हमारे चीफ भी थे, एयरफोर्स चीफ भी थे, और रशियन एयरबोर्न फोर्स चीफ था, क्योंकि रशिया में एयरफोर्स का चीफ अलग होता है, तो उनका चीफ भी आया हुआ था वहां पर. और अगर आपको याद हो तो एक हैवी ड्रॉप जो था वो बिल्कुल VIP स्टैंड पे आके रहा था. एयर मार्शल त्यागी वहां पर थे, जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ. उनको बहुत देखिए, लेट मी कॉल सर, टेक इट अ लिटिल फर्दर. अगर आप देखें इवन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो एयरबोर्न फोर्स से लॉन्च करते हैं. अभी आप रशिया, अभी US ईरान वॉर देखिए, जब ये बीच में जब वॉर हो रही थी तो US ने क्या किया, 82nd एयरबोर्न की ब्रिगेड मूव, 82nd एयरबोर्न. अगर
वेनेजुला में उन्होंने उसको उसके उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर किया तो किसने किया? डेल्टा फोर्स ने किया, जो उनके स्पेशल फोर्सेस है उसने किया। ग्रेनेडा में यूएस ने ऑपरेशन किया तो किससे किया? एयरबोर्न फोर्सेस से। वैसे हमने जब किया तंगेल में किसके साथ किया? 1971 जो बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर थी या पाकिस्तान की वॉर थी, उसमें 11 दिसंबर को सर दोपहर को हमने एक एयरबोर्न बटालियन लॉन्च करी थी, 2 पैरा जी तंगेल में। तंगेल इज एट आउटस्कर्ट्स ऑफ ढाका। तो अगर आप देखें 11 दिसंबर को जब लॉन्च हुई तो दैट टर्न द टेबल टोट। और 11 दिसंबर को अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो यूएस की 7th फ्लीट जो थी यूएसएस एंटरप्राइज के साथ, वो बांग्लादेश की तरफ आ रही थी। रशियन जो तब सोवियत यूनियन थे, हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, वो उसको टेल कर रहे थे, लेकिन वो आ रहे थे उधर। तो 11 दिसंबर जब हमने ये लॉन्च करा तो पूरी पैरा ब्रिगेड जो टुक ऑफ फ्रॉम वेरियस एयरफील्ड्स इन वेस्ट बंगाल, कलकत्ता वगैरह से, कलाईकोंडा वगैरह से, तो उधर से लगा कि पूरी ब्रिगेड लॉन्च करी है, लेकिन एक बटालियन ड्रॉप करी और बाकी ब्रिगेड थी जो वेस्टर्न सेक्टर में आ। और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो जनरल जेकब थे चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न कमांड के, तो एक क्वेश्चन प्लांट किया गया। इन्फॉर्मेशन वॉर की मैं एग्जांपल देता हूं। एक क्वेश्चन प्लांट किया गया कि आपने एयरबोर्न ऑपरेशन लॉन्च कर दिया तो ढाका का क्या हाल है? इज इट सराउंडेड बाय डिवीजन? क्वेश्चन इज इट सराउंडेड बाय डिवीजन? जेकब ने कुछ नहीं बोला। ये क्वेश्चन था रिपोर्टर का, इज ढाका सराउंडेड बाय डिवीजन? तो जनरल जेकब ने बोला ढाका इज सराउंडेड, नो वन कैन सेव ढाका नाउ। ठीक है, उन्होंने गलत नहीं बोला कुछ भी, बिकॉज दैट एयरबोर्न ऑपरेशन की वजह से, बिकॉज वी हैड ओनली 13-14 डेज टू कंप्लीट द ऑपरेशन एज पर द जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन चल रहा था। तो वो जो था, जो लॉन्च किया एयरबोर्न ऑपरेशन, उसकी वजह से वी कुड एक्चुअली एंटर ढाका। द फर्स्ट टू एंटर ढाका वाज कर्नल पन्नू एंड 2 पैरा। जनरल निर्भय शर्मा वाज द फर्स्ट वन गेट द लेटर फॉर सरेंडर आल्सो। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये एयरबोर्न ऑपरेशन जो है, चाहे यूएस है, चाहे रशिया है, चाहे इंडिया है, चाहे इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने भी करा हमेशा। 56 में सुएज में करा उन्होंने। फॉकलैंड वॉर में 2 पैरा जो थी उस पे उनके सीओ को वीसी मिला, विक्टोरिया क्रॉस। तो ये हमेशा स्पीयरहेड आगे रहते हैं, और ये उसकी वजह से जो इनिशियल विक्ट्री होती है और जो फ्लैंक टर्न कर देते हैं उसकी वजह से विक्ट्री बढ़ती है। तो ये आपने बहुत अच्छा सामने आप लाए कि इसके से क्या सबक है। और यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आगे आपसे हम बातचीत करेंगे कि और यूएस, चाइना, रशिया, हिंदुस्तान को देखते हुए आज के इंटेंस एयर डिफेंस एनवायरनमेंट की क्या स्थिति है, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। और व्यूअर्स से मैं कहूँगा कि हमारे साथ बने रहें, हमारी बातचीत जनरल विनोद भाटिया से जारी रहेगी। शुक्रिया।